That is, one is conditional branching and second is unconditional branching. Now, in branching, very first instruction is JMP. JMP stands for jump. Now, what happens in jump instruction? When you write JMP 16-bit address, let's say 16-bit address I'm writing here as 6000H. This is your program, some set of instructions you have written here. And in between somewhere, if you're writing this instruction, jump 6000H. And after that also you have written some line of program. And this 6000H is somewhere here at this particular point. And further there is some instruction. Now what will happen when you are writing jump 6000H? Processor is not going to execute this lines of instruction. It will directly jump to the 6000H location and it will start executing from that point. In 8085 processor, always sequential execution takes place. 8085 processor में हमेशा sequential execution ही होगा. That means starting from the first point, it start executing sequentially. One by one instruction it will execute. Now one by one execute करते हुए जब वो आएगा jump instruction पे, when it will reach to a jump instruction, JMP 6000H लिखा है आपने, what will happen? Now it will not execute sequentially. After the jump instruction, what it will do? It will not execute this section of instruction. Rather than that, it will jump to the 6000H location and from that point it will start executing. That means in your program, if some part of the program you don't want to get executed, then you can go for the jump instruction. समझ में आ रहा है? मैम ये नहीं समझा, can you repeat? Okay. See, JMP jump. Jump stands for your program counter, that is your PC will directly jump to the location which you have specified with the jump instruction. JMP के साथ, JMP instruction के साथ आपने जो ये लोकेशन डिफाइन की है ना 6000, क्या होने वाला है इस केस में? ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो डायरेक्टली वो 6000H पे इंस्ट्रक्शन चली जाती है. I'll repeat this again. Like अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है, आपने ये प्रोग्राम लिखा होगा, से एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी, कोई प्रोग्राम लिखा है, some lines of program you have written, okay, and within that program only if you are writing JMP 6000H, मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया? JMP 6000H. 6000H is the address जहाँ पे उसे जंप करना है, and say that 6000H is here, वो एड्रेस यहाँ पे है. ठीक है, ये कंप्लीट प्रोग्राम है यहाँ पे. So this one program you have written, और उस प्रोग्राम में अगर आपने JMP इंस्ट्रक्शन यूज किया है JMP 6000, तो what will happen? आपका जो प्रोसेसर है वो फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड सिक्वेंशियली वो एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते जाएगा. तो यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन होते हुए नीचे आ रहा है ना. जैसे ही वो जंप इंस्ट्रक्शन पे आएगा, व्हाट विल हैपन नाउ? जंप के बाद वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं करेगा. व्हाट इट विल डू, जैसे उसके जंप 6000H इंस्ट्रक्शन मिलेगी, इट विल जंप टू दिस 6000H का लोकेशन एंड वो पॉइंट से वहां से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा. अभी समझ में आ रहा है? हाँ मैम.
इसका मतलब क्या है, जंप के बाद के ये जो 3 लाइन के इंस्ट्रक्शन या जितने भी लाइन के इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अगर कोई स्किप करानी है सम इंस्ट्रक्शन, इफ यू वांट टू स्किप, तो आप वहां पे जंप इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। अभी ठीक है? हाँ मैम। ओके, तो जंप क्या करेगा आपको, आप जंप के साथ जो भी whichever address you will be defining with the jump instruction, your program counter will directly jump to that particular location, and from that onwards it will start executing. So it will primarily वो start तो first instruction से करेगा, it will start executing from the first instruction, it will go on executing in sequential manner, and जैसे ही in between उसे jump instruction मिलेगी, it will directly jump to that particular address which you have defined in the jump instruction. वो वहां पे जंप करके फिर उस मेमोरी एड्रेस से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो उसके इन बिटवीन जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो स्किप हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली जंप लिखा है, वो डायरेक्टली 6000 लोकेशन पे जाके वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे रहा है, राइट? यहाँ पे वो कोई भी कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रहा है। That means your processor is not verifying any condition here while jumping to the 6000 location. इसलिए इसे क्या बोलेंगे? This is unconditional jump. It is not verifying any condition. Without any condition, straightforward आपने jump instruction लिखा, straightforward उसे jump की instruction मिली, वो directly उसे location पे जाके वहां से execution start कर देगा। तो ये हो गया आपका अनकंडीशनल जंप, बिकॉज प्रोसेसर इज नॉट वेरीफाइंग एनी कंडीशन, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, डायरेक्टली जंप इंस्ट्रक्शन मिला तो डायरेक्टली वो लोकेशन पे जंप करके वहां से वो एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो दिस इज अनकंडीशनल जंप। द सेकेंड पार्ट which will come, that is a conditional jump. तो conditional jump में क्या होगा? Prior it will check for the condition. If that condition gets satisfied, then only it will jump to that particular location, and then only it will start execution from that point. Otherwise, sequential manner में पूरा का पूरा execution करेगा। समझ में आ रहा है? JMP जो है वो अनकंडीशनल जंप है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर JMP 6000 लिख दोगे तो डायरेक्टली 6000 पे चला जाएगा, पीछे के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 6000 ऑनवर्ड जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उसे वो एग्जीक्यूट करते जाएगा। दिस इज अनकंडीशनल जंप। व्हाट हैपेंस इन कंडीशनल जंप? आई टेक एन एग्जांपल। सिर्फ एग्जांपल, अगर JMP है, JMP say 9000 is. Now JMP stands for jump no carry. Jump when there is no carry. JMP stands for jump no carry. That means if carry is not generated or if carry is 0, then only jump to 9008 location. Otherwise sequential manner से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से ही एग्जीक्यूशन करो। समझ में आ रहा है? सिर्फ एग्जाम्पल, अगेन इफ यू हैव रिटन अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने लिखा JMP 9008, उसके बाद भी आपने सर्टेन प्रोग्राम्स लिखा एंड से 9008 is somewhere here at this particular point. Okay, so what will happen? Your processor will start executing from the very first line, sequentially वो execute करते हुए JMP तक आएगा। Now JMP में आने के बाद what it will check first? It will check for the carry का status. JMP stands for jump no carry. That means it will check the status of carry flag, whether carry flag is 0 or 1.
If carry flag is 0, then only it will jump to 9000H location. That means JMC जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलेगी प्रोसेसर को, प्रोसेसर सबसे पहले कैरी के पास जाएगा. It will check the status of carry flag. If carry flag is 0, then only it will jump to 9000H के लोकेशन पे जाके वहां से वो एग्जीक्यूशन करेगा. एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स इफ कैरी फ्लैग इज 1, देन इट विल नॉट जंप टू 9000 लोकेशन. इमीडिएटली जो नेक्स्ट लाइन है वहां से ही वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स उसके नीचे जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है वो स्किप नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे. समझ में आ रहा है? हाँ मैम. सार्थक, समरीन, तेजस, यस मैम. सबको समझ में आ रहा है? यस मैम. हाँ मैम. ओके, ठीक है. समरीन? मैम और जैसे Yes, ma'am. ओके. हाँ, जेसी में मैम 1 होगा तो ना. 1 होगा तो JMC जंप नो कैरी. दैट मीन्स इफ कैरी फ्लैग इज 0 तो ही वो उस लोकेशन पे जंप करेगा एंड उस लोकेशन ऑनवर्ड जो इंस्ट्रक्शंस है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा. दैट मीन्स सिंपली यू कैन रिमेंबर इन कंडीशनल जंप, इफ कंडीशन सेटिस्फाइड देन ओनली जंप विल टेक प्लेस. कंडीशनल जंप में क्या होगा? अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही वो जंप करेगा. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई देन नेक्स्ट लाइन ऑनवर्ड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रहेगी वो ही वो एग्जीक्यूट करते हुए आगे आगे चला जाएगा सिक्वेंशियली. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so JMP is unconditional straightforward jump. JMP के साथ जो भी एड्रेस आप दे दोगे सिंपली वहां पे वो जंप करके वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. कोई भी कंडीशन उसमें वेरीफाई नहीं होती है. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप. एंड रेस्ट बाकी के जो हैं, अभी आप यहाँ पे टोटल 8 कंडीशनल जंप्स देखोगे, जिसका मैंने एक एग्जांपल लिया JMC का. तो सच 8 कंडीशनल जंप्स वी हैव. ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. लाइक से फर्स्ट है जेसी जंप कैरी. जंप कैरी का मतलब क्या है? सेटिस्फाई होने वाली कंडीशन कौन सी है? कैरी फ्लैग इज 1. समझ में आ रहा है? जेसी लिखोगे, जेसी से 2000H. ठीक है, तो क्या होगा? जेसी 2000H में क्या होगा? जेसी 2000H इंस्ट्रक्शन अगर मैंने लिखी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मैम अगर कैरी 1 होगा तो हाँ, जंप कैरी 1 होगा नहीं तो होगा. क्या होगा? और कैरी 0 होगा तो क्या होगा? नहीं जंप होगा मैम. जेसी 2000. हाँ, इफ कैरी इज 1 तो फिर वो 2000 की लोकेशन पे जंप करेगा. ठीक है, उसका जेसी का मीनिंग क्या है? जंप कैरी. व्हेन कैरी इज देयर देन जंप. मतलब व्हेन कैरी फ्लैग इज 1 देन जंप टू 2000 लोकेशन. एल्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूट करो. ठीक है, so these are all conditional jump. JC अगर कैरी 1 होगा तो जंप करेगा, कैरी 0 होगा तो नहीं करेगा. अपोजिट JMC अगर कैरी 0 होगा तो जंप करेगा, कैरी 1 होगा तो जंप नहीं करेगा. इसका ही मतलब है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑनवर्ड ही एग्जीक्यूट करेगा. कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रोग्राम का पार्ट वो स्किप नहीं करेगा. JP for jump if positive. Now here it is going to check the sign flag. Sign flag अगर 0 होगा तो जंप करेगा. JM sign flag अगर 1 होगा तो जंप करेगा. JZ
Z अगर 1 होगा तो जंप करेगा, दैट इट विल चेक फॉर द 0 फ्लैग. JNZ अगर Z 0 होगा तो जंप करेगा. JPE and JPO, that is for checking the even or not parity, that is from parity flag. So all these flags are available in flag register. आपको नहीं चेक करना है, by default your processor is going to check, and depending upon क्या condition है, what is the present condition of the flag register, it will take a decision to whether jump or not. ठीक है? These are the all conditional jump instructions. Now, among this, most of the time we will be using this JCJNC and JZJNZ. ज़्यादातर टाइम हम ये दो इंस्ट्रक्शन ज़्यादा यूज होते हैं प्रोग्राम्स में. जंप कैरी, जंप नॉट कैरी, jump if 0, jump if not 0. Okay, because whenever we want to form a loop, we require this J and Z instruction. जहाँ पे भी लूपिंग आपको फॉर्म करनी है वहां पे हमें JNZ की जरूरत पड़ेगी. तो ये याद रखो, लूपिंग है तो JNZ बाय डिफॉल्ट आ जाता है. ठीक है? First instruction from branching is clear. Conditional jump and unconditional jump. Yes, ma'am. हाँ मैम. Now next is call. Okay, one more thing. JMP or all those conditional jumps are how many byte instruction? क्या आता है इसके साथ? Operand 16-bit address. So if this is जिसके साथ 3 byte. address आता है 3 byte. That is always a 3 byte instruction. 1 byte कुछ नहीं होता है साथ में. Plain instruction होगा, then it is 1 byte instruction. If data like MVI है, ADI है, MVI we have, then ADI है. Last lecture में we have seen ORI, ANI, XRI. जिसमें भी I आता है, with the immediate data you are providing in the instruction itself, then that belongs to 2 byte instruction. कुछ नहीं होता है तो 1 byte. If data you have to provide in the instruction, then it is 2 byte instruction. And if you are providing address, then it is 3 byte instruction. So jump के जितने भी instructions है, whether it's an unconditional jump or conditional jump, all are 3 byte instructions. ठीक है? Next is Yes, call. Next is call. Now again, if I write call, the 16-bit address, if I write 3000 in. Now when we use instruction, when I want a small part of a program in my main program to be get executed many times. So for example, this is my main program. Okay, this is my main program. In this program, this blue sets of instruction I'm repeating say 10 times. ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें ये जो blue lines हैं, those are the some instruction which same instruction I'm repeating 10 times in my program. So rather than repeating same set of instructions 10 times in the program, what I can do is
I can form a small another program which will contain this, which I am repeatedly जो मैं repeatedly अपने main program में बार बार repeat कर रही हूँ ना, those lines मैं separately एक individual छोटे से प्रोग्राम में डाल देती हूँ. ठीक है. तो ऑल दिस ब्लू लाइंस का जो बार बार रिपीट कर रही थी मैं, उसका मैंने एक छोटा सा अलग प्रोग्राम बना लिया. समझ में आ रहा है? मैंने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा है. उस बड़े प्रोग्राम में मैं क्या कर रही हूँ, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम या स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो रिपीटेडली मेरे उस बड़े प्रोग्राम में बार बार आ रहा है. फिर 10 टाइम्स आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है. ठीक है. जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है. तो व्हाट आई कैन डू इज, जो बार बार जो सेक्शन बार बार मेरे प्रोग्राम में रिपीट हो रहा है, मैं उस सेक्शन का ही एक छोटा सा अलग प्रोग्राम बना रही हूँ और उसको हम बुलाएंगे सब रूटीन. उसको हम बुलाएंगे सब रूटीन. समझ में आ रहा है? मैम वो कॉल वाला वापस कराओ ना. हाँ ठीक है. ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है. देखिए ये एक प्रोग्राम लिखा है, एक बहुत लेंथी प्रोग्राम लिखा है. उस प्रोग्राम में सम लाइन, सम इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली बार बार आ रही है मेरे इस प्रोग्राम में. ठीक है. अभी तो ये जो रेड लाइन्स है, ये रेड लाइन्स क्या इंडिकेट कर रही है कि वो प्रोग्राम में, ये बाकी की ब्लू लाइन्स जो है वो, ये रेड लाइन्स ब्लू लाइन्स मिला के ये मेरा मेन प्रोग्राम है. इसमें का जो रेड लाइन्स का जो सेक्शन है वो सेम है, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. ठीक है. जो 4 बार मेरे इस मेन प्रोग्राम में रिपीट हो रही है. तो मैं क्या करूंगी, ये जो रिपीट हो रहा है ना जो सेक्शन रेड लाइन का, वो मैं बाहर निकाल रही हूँ और उसका ही एक छोटा सा प्रोग्राम बना रही हूँ. उसको मैंने बाहर निकाल लिया. ठीक है. इसे नाम देंगे हम सब रूटीन. ROUTN. ठीक है. इसे नाम देंगे हम सब रूटीन. यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ मैम. अभी हम कॉल कहाँ पे यूज करेंगे नाउ? अभी ये सेक्शन मैंने उठा के ये छोटा सा प्रोग्राम बना लिया ना, दैट मीन्स ये यहाँ से निकल गया. ठीक है. So now whenever I want this small part of a program in my main program, मैं क्या करूंगी, कॉल करूंगी. कॉल 3000H. मैं क्या करूंगी, जितने बार भी ये प्रोग्राम मुझे अपने मेन प्रोग्राम में चाहिए उतनी बार मैं उससे कॉल करूंगी. मैम 3000H क्यों दिया आपने नाम? 3000H क्योंकि ये 3000H पे मैंने ये अपना प्रोग्राम लिखा है. ओके. Small part of a program which is repeatedly I want in my main program. एक छोटा सा सेक्शन जो मुझे बार बार अपने मेन प्रोग्राम में चाहिए, मैं उसे क्या कर रही हूँ, मैं उसे साइड में लिख रही हूँ. साइड में जब हम उसे लिखते हैं तो हम उसे नए नाम से बुलाते हैं सब रूटीन. ओके. नाउ व्हेनेवर आई वांट दैट स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इन माय मेन प्रोग्राम, तो अभी मैं उसे कॉल करूंगी. तो व्हाट आई राइट कॉल 3000. तो क्या होता क्या है, अभी ऐसे देखो, ये आपका मेन प्रोग्राम है, ये आपका सब रूटीन का छोटा सा प्रोग्राम है. ठीक है. जो स्टार्ट हो रहा है से लोकेशन 3000H. सम लाइन्स ऑफ प्रोग्राम यू हैव रिटन. अभी आपको ये छोटा वाला प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में चाहिए, तो यू विल राइट कॉल 3000H. और थोड़े से प्रोग्राम के बाद वापस से चाहिए तो वापस से यू कैन राइट कॉल 3000H. So when you write call 3000H, what will happen? ये आपका मेन प्रोग्राम छोड़ के प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे चला जाता है, इस 3000H के लोकेशन पे जाता है
वहां पे ये स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल, ये जो सब रूटीन का प्रोग्राम है इसके एंड में व्हाट वी राइट इज RET। सब रूटीन के प्रोग्राम में एंड में क्या लिखते हैं हम? RET। RET स्टैंड्स फॉर रिटर्न। RET स्टैंड्स फॉर रिटर्न। तो ये मैम और रिटर्न RST क्यों यूज होता है? RST stands for restart. RET stands for return. तो subroutine execute होने के बाद it will return to the next line of the call instruction. समझ में आ रहा है? हाँ मैम समझा। अगेन जब आपने यहाँ पे कॉल, सेकेंड कॉल लिखा है यहाँ पे, तो अगेन इट विल गो टू दिस 3000 लोकेशन। अगेन इट विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। जैसे ही उसे RET रिटर्न मिलेगा, अगेन इट विल कम बैक टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट लाइन जो कॉल करेगा उस पे आएगा और वहां से फिर वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो जितनी भी बार आपको ये छोटा सा जो साइड में लिखा हुआ प्रोग्राम है, जो सब रूटीन है, वो आपको अपने मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवाना होगा। दैट मेनी टाइम्स यू नीड टू जस्ट कॉल दैट प्रोग्राम। आ रहा है समझ में? समरी एंड सार का पेजेस। हाँ मैम समझा। हाँ, तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी स्पेस बचा रहे हैं प्रोग्राम की। ठीक है, जो भी बार बार हम जो रिपीट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, जो भी सेक्शन है उसको हमने निकाल के साइड में रख दिया। अब जितनी बार भी उसकी हमें जरूरत रहेगी, हम सिर्फ उसे साइड में रखा हुआ रहेगा, सिर्फ हम उसे कॉल करेंगे। जब आप कॉल करते हो तो होता क्या है, आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके मेन प्रोग्राम से उस सब रूटीन के प्रोग्राम पे। सब रूटीन में जाके वो वहां से एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन के एंड में जब उसे रिटर्न मिलेगा RET, जैसे वो RET इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो वहां से उसे पता चल जाएगा कि नाउ सब रूटीन यहाँ पे खत्म हो गया एंड उसे रिटर्न अपने मेन प्रोग्राम पे जाना है। तो वहां से फिर वो रिटर्न होके अपने मेन प्रोग्राम पे वापस आके फिर से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जितनी बार भी आपने कॉल इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा उतनी बार ये प्रोसेस होते रहेगी। सबका लेंदी प्रोग्राम दो प्रोग्राम में एक मिनिमाइज छोटा प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉल इज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ ये क्या था? कॉल, दिस इज अनकंडीशनल कॉल बिकॉज बिफोर जंपिंग टू दी सब रूटीन आप यहाँ पे कुछ भी वेरीफाई नहीं कर रहे हो कि वेदर, अगेन क्या वेरीफाई करना होता है हमें? तो वेदर कैरी इज जनरेटेड और नॉट, कैरी 0 है या 1 है, या 0 फ्लैग 0 है या 1 है, कुछ भी यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया था। इसलिए ये कॉल क्या है? अनकंडीशनल कॉल है। और उसी की जगह अगर आप CNC लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल नाउ आपने कॉल लिखा CNC 4008, ये जो एड्रेस होता है वो हमेशा सब रूटीन का एड्रेस होता है। तो ये आगे आपका सब रूटीन, यहाँ पे रहेगा आपका 40008। Now CNC stands for call no carry. Call no carry, that means now it will call that small part of a program, that subroutine program, when there is no carry. मतलब अभी ये तब कभी कॉल करेगा जब कैरी 0 होगा तो ही कॉल करेगा। तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा whether carry is 0 or not. If carry is 0, then only it will call this subroutine program. मतलब तभी ये subroutine program एग्जीक्यूट होगा, तभी आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो शिफ्ट होके 4000 पे जाके एग्जीक्यूशन करके RET रिटर्न मिलेगा, तो वो आएगा नेक्स्ट लाइन पे। ये पूरा प्रोसेस होगा। इफ कैरी इज 1, इफ कैरी इज 1, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर वो 4000H पे नहीं जाएगा, वो सबरूटीन में एंटर नहीं करेगा एंड नेक्स्ट लाइन ऑनवर्ड भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट रखेगा। समझ में आ रहा है? यस।
सबको समझा? हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके, तो ये हो गया आपका कंडीशनल कॉल. दैट मीन्स first if condition is satisfied then only it will call to the subroutine and subroutine get executed. अगर condition satisfy नहीं हुआ it will not entered into the subroutine and it will execute from the next line onwards. So again in similar manner जैसे हमारे पास jump के 8 conditional jump instructions हैं, same हमारे पास 8 conditional call instructions हैं. Okay, so call will take place if carry is 1. CMC में क्या होता है? अगर carry 0 होगा then only it will go into the subroutine, it will execute the subroutine. S stands for this 2 for carry, this 2 for sign flag, this 2 for 0 flag and this 2 for parity flag. ठीक है? So whichever call you have used here, depending upon that, it will check the condition. If condition is satisfied, then only it will enter into the subroutine, else it will execute from the next instruction onwards. Call clear है सबको? और कॉल को हमेशा क्या ये- लगता है? हाँ बोलो. कॉल इफ माइनस क्या है? साइन फ्लैग. साइन फ्लैग जो D7 बिट होता है चेक करता है आपका साइन फ्लैग. अगर S0 होता है मतलब दैट नंबर इज पॉजिटिव, माइनस मतलब दैट नंबर इज नेगेटिव. साइन फ्लैग 0 है, इसका मतलब द गिवन नंबर इज पॉजिटिव. दैट मीन्स आपके पास अगर some set of data is given, some set of data like 10 numbers are given, and among those 10 numbers if you have to find out how many numbers are positive and how many numbers are negative, so वहाँ पे you can use sign flag. So you can use CP or CM. समझ में आया? हाँ मैम. एक्चुअली माइनस का मतलब है दैट इज अ नेगेटिव नंबर. कॉल S is 1, that is D7 bit is 1, that is the given number is negative number. Call is incomplete instruction until and unless RET is not given. मैंने कहा सबरूटीन के एंड में क्या लिखना होता है हमें? RET. RET लिखोगे तो ही उससे पता चलेगा कि सबरूटीन एग्जीक्यूट हो गया है एंड नाउ उसे कहाँ पे ट्रांसफर होना है? वापस से मेन प्रोग्राम में. तो RET एंड कॉल दोनों एक साथ ही आते हैं हमेशा. ठीक है? क्लियर है? RET हमेशा हाँ, मैम. सबरूटीन में लिखना होता है एज अ रिटन इंस्ट्रक्शन. फाइन. सेम वी हैव RET stands for simple written without checking any condition. अगर वो रिटर्न आ जाता है मेन प्रोग्राम में then it's unconditional written. अगर आप obviously conditions डाल दोगे then first it will check for the condition. अगर condition satisfy हुआ then only it will return to the main program. अगर condition satisfy नहीं हुआ तो वो सबरूटीन में ही रहेगा. ओके, तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही वो सबरूटीन से बाहर आके मेन प्रोग्राम में आएगा. दैट इज योर कंडीशनल रिटर्न. नाउ अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है. ये एक प्रोग्राम है. The
This is your subroutine program. If you write call 9000H, so definitely this subroutine is starting from 9000H. And you will be writing RAT. Okay. Now suppose in this program you have written call 2 times. So the very important thing with this RET, कॉल लिखते हो, कॉल के साथ व्हाट यू आर राइटिंग दी एड्रेस, तो उसे पता होता है कि उसे जाना कहाँ पे है. कॉल के साथ आपने 9000 लिखा है, तो प्रोग्राम प्रोसेसर को पता है कि उसे 9000H के लोकेशन पे जाके सब रूटीन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. बट वाइल रिटर्निंग RET के साथ वी डोंट स्पेसिफाई एनी एड्रेस. मैम RET इंस्ट्रक्शन. हाँ बोलो. मैम मनीष को अंदर लो ना, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है. अच्छा ठीक. मनीष. Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके. हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस मैम.
ओके, क्वेश्चन सुना था आप लोगों ने? हेलो? नहीं मैम, नहीं मैम। ओके, आई रिपीट। सपोज ये एक प्रोग्राम लिखा है, ओके, एंड हियर इन प्रोग्राम आई हैव रिटन कॉल 9000h. Say twice I have written call 9000h. 9000h क्या होगा? Definitely a subroutine program where we have written a small set of a program. So this is 9000h, starting location of subroutine. Okay, and at the end what do we write? Subroutine के end में हम क्या लिखते हैं? RET, written. Now my question is, जब भी मुझे सबरूटीन को कॉल करना होता है अपने मेन प्रोग्राम में, हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कॉल 9000. अलोंग विद द कॉल वी आर डिफाइनिंग द सबरूटीन का एड्रेस कि सबरूटीन कहाँ पे लिखा है. देन योर प्रोसेसर कैन स्विच टू दैट 9000h सबरूटीन के प्रोग्राम पे स्विच करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, एंड जैसे ही उसे RET मिलता है इट विल रिटर्न बैक टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन. माय क्वेश्चन इज, जब उसे सबरूटीन में जाना होता है, दैट टाइम वी स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट सबरूटीन, बट व्हाइल रिटर्निंग सिर्फ हम RET लिखते हैं, वी डोंट स्पेसिफाई द एड्रेस, है ना? एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करते ना. तो प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि फर्स्ट कॉल के रिटर्न पे उसे जाना है या सेकंड कॉल के रिटर्न पे उसे जाना है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं मैम। क्वेश्चन नहीं समझा? सेम प्रोग्राम मैं सबरूटीन को अपने मेन प्रोग्राम में 2 बार कॉल कर रही हूँ. दिस इज द फर्स्ट कॉल इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज माय सेकंड कॉल इंस्ट्रक्शन. ठीक है? नाउ व्हेन यू मेक द फर्स्ट कॉल, व्हेन यू राइट कॉल 9000h, व्हाट विल हैपन? कॉल करते हो तो आपका जो प्रोसेसर है वो 9000h पे चला जाएगा, आपका प्रोग्राम काउंटर 9000h पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा. उसे वो एग्जीक्यूट करके जब एंड में आएगा तो उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है RET, एंड RET स्टैंड्स फॉर रिटन. ना RET के साथ वी हैव नॉट, मैंने कोई एड्रेस स्पेसिफाई किया है क्या? RET सिर्फ RET लिखते हैं हम, उसके साथ हम कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करते. तो इस इंस्ट्रक्शन से कैसे पता चलता है कि उसे जो रिटर्न पोजीशन जो है उसका वो फर्स्ट कॉल के सेकंड लाइन पे होना चाहिए या सेकंड कॉल के सेकंड लाइन पे होना चाहिए? अभी समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? यस मैम. क्या लगता है कैसे समझ में आता होगा? क्योंकि RET के साथ तो हम कोई एड्रेस नहीं डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उसे कहाँ रिटर्न जाना चाहिए? हमने जो मेन प्रोग्राम लिखा है उसमें तो हमने बहुत बार कॉलिंग की होगी सबरूटीन को, बिकॉज वो स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट कर रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम में. तो वो रिटर्न के साथ जब हम कोई एड्रेस नहीं स्पेसिफाई कर रहे तो कौन से वाले कॉल के पास रिटर्न जाएगा? मैम ऑब्वियसली पहले वाली इसमें ही जाएगा ना, क्योंकि पहले कॉल तो 9000 ही होगा, सेकंड वाला कैसे होगा डायरेक्ट? ठीक है, मान लो अगर थर्ड फोर्थ कॉल हुआ तो क्या वो एकदम पहले वाले में जाएगा? लाइक मैंने कहा ना, जैसे हम बार बार बुला रहे हैं ना उसे, तो थर्ड टाइम कॉलिंग की है मैंने उसे, तो क्या उसका रिटर्निंग फर्स्ट एंड सेकंड वाले कॉल पे जाना चाहिए? नहीं ना, उसे तो थर्ड वाले के बाद ही आना चाहिए ना. समझ रहे हो? हाँ मैम. हाँ, मतलब इन बिटवीन मिडल में कहीं से कॉलिंग हुई है तो फिर भी वो अगर पीछे की तरफ चला गया तो? मैम हाँ मैं मतलब समझा नहीं. हाँ, समझा नहीं? क्वेश्चन नहीं समझा? नहीं मैम, मैं क्वेश्चन समझाइए, आप बोलो ना अभी वो नहीं समझा. लाइक मैंने बोला कि ये जो कॉल लिख रहे हैं हम अपने मेन प्रोग्राम में वो मैंने 10 टाइम्स 20 टाइम्स लिखा है सपोज,
इतना बड़ा है प्रोग्राम कि मैंने 10 टाइम्स लिखा है वो कॉल, ठीक है। एंड सपोज मेरा थर्ड नंबर का कॉलिंग गया है अभी, तो उसका रिटर्न जो है वो थर्ड के बाद ही आना चाहिए ना, थर्ड कॉलिंग के बाद ही उसके नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न आना चाहिए। एंड सपोज वो होता ऐसे ही है कि वो थर्ड के बाद ही कॉलिंग आएगा, रिटर्न आएगा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि कैसे उसे पता कैसे चलता है कि थर्ड के बाद ही आना है। वो फर्स्ट या सेकंड पे चला गया तो, फर्स्ट कॉल पे ही रिटर्न चला गया तो, या सेकंड कॉल पे ही रिटर्न चला गया तो, समझ रहे हो? यस मैम। बिकॉज RET के साथ हम एड्रेस नहीं डिफाइन कर रहे हैं ना। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता होगा यहाँ पे, या क्या प्रोसेसर क्या करता होगा? मतलब जंप, यहाँ पे एक सिंपल सा हिंट है, लाइक जब हम कॉल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो जहाँ पे हम कॉल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, वहां का जो एड्रेस होता है ना, वो कहीं पे उसे सेव करके रखना पड़ता है। तो रजिस्टर में शायद काउंटर सेट करना पड़ेगा। एड्रेस है ना, एड्रेस है ना, काउंटर Okay. नहीं नहीं नहीं, काउंटर नहीं। एड्रेस है आपको। ठीक है, मैं बताती हूँ करता क्या है आपका प्रोसेसर इसमें। क्वेश्चन तो समझ में आया ना हमारा प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ मैम। प्रॉब्लम नहीं है, लाइक RET के साथ वी आर नॉट डिफाइनिंग द एड्रेस, एंड जब हम एड्रेस भी नहीं डिफाइन करें उसके बाद भी वो राइट कॉल पे ही कैसे पहुंचता है, तो उसका रीजन ये है कि आपने ये जो मेन प्रोग्राम लिख के रखा है बड़ा वाला, उसका ये जो आप कॉल इंस्ट्रक्शन लिखोगे, ये सपोज आपने लिखा है यहाँ पे कुछ लोकेशन है, आपने जो लिखा है, आप जो लिख रहे हो प्रोग्राम वो भी तो मेमोरी में ही लिख रहे हो ना, तो उसका भी तो एड्रेस होगा। इसका एड्रेस है से 3000H है, फिर इस कॉल का एड्रेस है से 5000H है। ठीक है, तो अभी होता क्या है, आपका जो ये प्रोग्राम काउंटर है, आप जब कॉल इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो जहां पे भी आपने ये कॉल इंस्ट्रक्शन लिखी है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस स्टैक पॉइंटर SP में स्टोर हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये जो 3000 आपने जहां कॉल इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, 3000, ये 3000 आपका SP में जाके स्टोर हो जाता है, और एक बार SP में जाके वो स्टोर हो गया उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो न्यू प्रोग्राम 9000H पे एंटर करके वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और जैसे ही उसे रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलती है सबसे पहले वो SP को चेक करता है। SP में उसे क्या मिलेगा? SP में उसे मिलेगा 3000, इसलिए वो इमीडिएटली 3001 पे रिटर्न आता है। आया समझ में? मैम पर हम Yes, एड्रेस तो मैं मतलब स्पेसिफाई नहीं करते तो कैसा मालूम पड़ेगा? वही नहीं समझा। क्या नहीं स्पेसिफाई करते? एड्रेस तो स्पेसिफाई नहीं करते, आगे कॉल तो सेम ही है, हाँ। 9000H 9000H। हाँ, आप मालूम कैसे कॉल, पड़ेगा कि सेकंड कॉल ने बोला है कि थर्ड कॉल ने? वो नहीं समझा। हाँ अभी जब भी सेकंड कॉल, अभी ये पहला वाला हो गया, अभी सेकंड कॉल जब वो एग्जीक्यूट करने जाएगा तो सेकंड कॉल का एड्रेस चेंज हो गया है ना, तो अभी SP में 5000H चला जाएगा ना। हाँ। अभी जैसे वो सेकंड कॉल पे जाएगा तो कॉल कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉल लिखा हुआ है 5000H पे। समझ रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो अभी SP हो जाएगा आपका 5000। अभी SP हो गया 5000, कॉल इंस्ट्रक्शन ये 9000 पे जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही रिटर्न मिलेगा अगेन वो SP का वैल्यू चेक करेगा। SP का रिसेंट वैल्यू क्या होगा? 5000 होगा, इसलिए वो फिर 5001 पे आएगा। यस मैम।
है समझ में? मैम हाँ, मैम वो कॉल इंस्ट्रक्शन इधर बताना क्या है? कॉल नहीं समझ में आया, वापस बताओ। नहीं मैम, मैं था नहीं ना अभी तक तो। कॉल में क्या होता है? कॉल इज लाइक, कॉल इंस्ट्रक्शन हम कब लिखते हैं? व्हेन वी वांट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम रिपीटेडली इन अ मेन प्रोग्राम। एक छोटा सा सेक्शन होगा प्रोग्राम का जो हमें बार बार अपने मेन प्रोग्राम में जो हमें रिपीट करना होता है, उसको क्या करते हैं हम साइड में लिखते हैं एज अ सब रूटीन। तो ये हो जाता है आपका मेन प्रोग्राम। रिपीटेडली जो 10 से 12 बार हम अपने मेन प्रोग्राम में रिपीट कर रहे हैं कोई भी चीज, जिसके वजह से अपना प्रोग्राम का जो लेंथ है वो बहुत लेंथी हो जाता है, उसे रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जो रिपीटेडली जो लाइंस है वो लाइंस को हम साइड में लिख सकते हैं, और वो जो साइड में लिखते हैं उस प्रोग्राम को हम बोलेंगे सब रूटीन प्रोग्राम। ठीक है? तो अब ये जो स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो बार बार आपको मेन प्रोग्राम में चाहिए ना, आप सिर्फ उसे कॉल करते जाओ। तो ये सपोज कि ये सब रूटीन आपने लिखा है लोकेशन 9000H पे, तो आप सिर्फ कॉल लिखो 9000H लिखो। तो होगा क्या, जितनी बार भी आपने कॉल 9000H लिखा रहेगा उतनी बार वो स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम आपके उस लाइन पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कॉल आया यहाँ पे, तो आपका प्रोग्राम जो आपका प्रोसेसर है वो 9000H पे जाएगा। 9000H पे जाके वो इस स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके इसके एंड में हम लिखते हैं RET। सब रूटीन के प्रोग्राम के एंड में वी राइट RET। RET स्टैंड्स फॉर रिटर्न। ठीक है? तो जैसे कॉल 9000 लिखोगे, आपका प्रोसेसर 9000 पे जाएगा, सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे उसे RET मिलेगा इट विल रिटर्न बैक टू द मेन प्रोग्राम के नेक्स्ट लाइन पे। पहले वाला कॉल हो गया एग्जीक्यूट, फिर बीच की जो भी लाइंस रहेगी उसे एग्जीक्यूट करेगा वो, वापस से उसे कॉल इंस्ट्रक्शन मिलेगी, वापस से वो 9000 पे जाएगा, इस स्मॉल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके वापस से रिटर्न आएगा सेकेंड कॉल पे आपको। आया समझ में? मैम तो बार बार 9000H का ही डेटा जा रहा है। 9000 उसके नीचे जो 9001 रहेगा 2 रहेगा वो 9000H स्टार्टिंग लोकेशन है सब रूटीन प्रोग्राम का। ये एक छोटा सा प्रोग्राम ही है, उसका स्टार्टिंग लोकेशन 9000H है। मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है उसका लोकेशन आप बता रहे हो। मैंने क्या बोला, सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम ही आप ऐसे साइड में आपने रखा हुआ है जो 10 बार आपको अपने मेन प्रोग्राम में रिपीट करना है। अब 10 बार वो ही लाइन 10 बार नहीं लिखोगे, क्या करोगे आप उसे, वो जो लाइंस रहेगी, से 5 लाइंस का प्रोग्राम है जो 10 बार आपके मेन प्रोग्राम में रिपीट हो रहा है, तो वो लाइंस बढ़ के 50 हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, सिंपली वो 5 लाइंस को साइड में मेन प्रोग्राम, और जो साइड में आप लिख कर रहे हो ना उसका लोकेशन 9000 है, कि मतलब वहां पे वो लिखा हुआ है। सबका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, वो वहां पे जाएगा और वो 5 लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे 9000 लिखा है तो वहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, उसी को एग्जीक्यूट करके वो रिटर्न आ जाएगा, ऐसे नहीं है। 4-5 लाइन का वो जो प्रोग्राम रहेगा वो पूरा वो एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे उसे रिटर्न मिलेगा वैसे वो रिटर्न फिर अपने मेन प्रोग्राम में आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट करें अभी। यस ये समझ में आया? प्रायर वो जब 9000 या प्रायर जब आपका प्रोसेसर सबरूटीन में एंटर करने के पहले क्या करता है, जहां पे भी आपने कॉल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसका एड्रेस वो स्टैक पॉइंटर पे डाल देता है। तो वाइल रिटर्निंग RET के साथ हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन, RET के साथ हमें कुछ भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, बिकॉज RET इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के टाइम पे प्रोसेसर खुद स्टैक पॉइंटर का कंटेंट चेक करता है और वहां पे फिर उसे
मेन प्रोग्राम का एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि लाइक रिटर्न के साथ एड्रेस स्पेसिफाई क्यों नहीं होता, बिकॉज प्रायर कॉल आपका नेक्स्ट प्रोग्राम में एंटर करने के पहले अपना जो एड्रेस होता है वो स्टैक पॉइंटर पे पुश कर देता है। मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो कंडीशनल कॉल, अनकंडीशनल कॉल, सिंपल रिटर्न और अनकंडीशनल रिटर्न एंड दिस इज कंडीशनल रिटर्न। अगेन कंडीशनल रिटर्न, ये क्लियर है सब? ये सारे हो गए आपके ब्रांचिंग के इंस्ट्रक्शन, मेन ब्रांचिंग के इंस्ट्रक्शन हो गए। जंप, JMP unconditional jump, then JNC, JC, JNZ, JZ, JP, JPO, वो जितने भी 8 है all those are conditional jump. Then CALL call, unconditional call, then CNC, CC, CNZ, CZ, all those are conditional calls. RET, unconditional written, and again those are RC, RNC, RP, RM, RZ, all these are conditional written. मैम हाँ बोलो। मैम कंडीशनल कॉल एंड अनकंडीशनल कॉल करते हैं। अभी तो बता, कंडीशनल कॉल, अनकंडीशनल कॉल दैट मीन्स CALL लिख दिया आपने, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी एड्रेस स्पेसिफाई किया है वो वहां पे चला जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चला जाता है। बट इफ यू राइट CNC, CNC स्टैंड्स फॉर कॉल नो कैरी। मतलब कंडीशनल कॉल का मतलब ये होता है पहले वो कंडीशन चेक करता है। से फॉर एग्जांपल CNC है, तो CNC में कैरी फ्लैग अगर 0 होगा तो ही वो 9000H जो लोकेशन स्पेसिफाई की है सब रूटीन की, वहां पे वो जाके एग्जीक्यूशन करेगा, एल्स नेक्स्ट लाइन ऑनवर्ड से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो कंडीशनल कॉल का मीनिंग ये है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो सब रूटीन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो भी नेक्स्ट लाइन का मेन प्रोग्राम में जो भी नेक्स्ट लाइन रहेगी वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। समझा मैम। हाँ, now next is RST. RST stands for restart and RST 0 से लेके 7 तक है, all those are called software interrupt। यह हमने ऑलरेडी किया था इंटरप्ट के सेक्शन में। हार्डवेयर इंटरप्ट के नाम याद है आप लोगों को? मास्केबल, अनमास्केबल, वही ना मैम? वही, बट हार्डवेयर हमने कैटेगरीज की थी इंटरप्ट में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर, नॉन वेक्टर, एंड एट लास्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी। तो हार्डवेयर में भी आप सीन ऑलरेडी दो 5 इंटरप्ट ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ये हो जाते हैं 5 हार्डवेयर इंटरप्ट जो ऑलरेडी पिन डायग्राम में आते हैं। हाँ मैम। राइट, और उसके अलावा हमारे पास 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, RST 0 to RST 7। Those are called software interrupts. That means by writing the instruction you can generate the interrupt. Say for example, आप अगर प्रैक्टिकल करोगे कॉलेज में जाके तो आपका जो 8085 का किट होगा, आप जब उसे ऑन करते हो तो उसके ऊपर फ्रेंड या कुछ तो MCA सर्टिफाई करके लिख के आता है। हाँ मैम, फ्रेंड आता है। हाँ, तो कुछ तो ऐसे मतलब लिख के आता है, तो दैट स्टैंड्स फॉर
कि आप जब उसे जस्ट ऑन करते हो तो एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है उसमें, जिसकी वजह से आपके आपके डिस्प्ले पे आपके वो जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है उस पे आपको वो सारी फ्रेंड हो गया या MCS 85 हो गया, दैट इज विजिबल टू योर। तो ये इंटरनली फीड होता है। लाइक एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको RST1 लिखना होता है। RST1 इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब वहां पे आपका प्रोग्राम खत्म होता है, जिसका TF लिखते हो, TF या फिर 76 अप कोड है। अगर वो अप कोड आप डाल देते हो तो दैट 76 ऑफ TF इज कंसिडर्ड एज एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये प्री डिफाइंड है। RST1 स्टैंड फॉर एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैम हाँ बोलो। मैम एंड में तो HLT भी लिखते हैं ना? HLD भी लिखो। वही मैंने 2 अप-कोड्स बताया ना, एक 76 बताया, एक TF बताया। कुछ जो किट है, कुछ जो आपके प्रोसेसर के किट है, वो किट जो है वो 76 पे ही एंड ऑफ द प्रोग्राम कंसीडर करते हैं। बट ऑनलाइन एक असेंबलर आता है, 8085 असेंबलर ऑनलाइन, इससे कर सकते हो आप प्रोग्राम। मोबाइल पे कर सकते हो या आपके लैपटॉप पे कर सकते हो। 8085 प्रोग्रामिंग, 8085 असेंबलर करके आता है। देयर एंड ऑफ द प्रोग्राम आप अगर 76 डालोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। देयर यू रिक्वायर्ड TF। ठीक है, तो ये इससे मैंने दोनों बताया। RST1 ऑल्सो एक एंड ऑफ द प्रोग्राम कंसिडर होता है एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एल्स हॉल्ट इज ऑल्सो रिटन एज एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो दोनों भी लिख सकते हो आप, RST1 भी लिख सकते हो या हॉल्ट भी लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है असेंबलर क्या है। ठीक है, now all this RST0 to RST7, all these interrupts are vectored interrupts. What is vectored, non-vectored interrupt? What do you mean by vectored? क्या हुआ, नहीं याद है? मैम वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ ना, बोलो। Right, vector is magnitude and direction. But in processor के language में direction क्या है हमारा? उसको memory address, location, nice, right? The place, right? So, what do you mean by a vectored interrupt? That means the interrupt, जो भी interrupt generate होता है, वो interrupt अपने साथ अगर address भी carry करता है, where that ISR routine, interrupt service routine is already written, अगर उसका वो एड्रेस कैरी करता है तो दैट इंटरप्ट इज कॉल्ड वेक्टर्ड इंटरप्ट। मैंने बताया था ना आपको, आपके सर पढ़ा रहे हैं, अगर आपके प्रिंसिपल सर एंटर होते हैं तो सर आपके क्या करेंगे, सर जो भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। आपके प्रिंसिपल सर जो भी उन्हें काम असाइन करेंगे पहले वो काम वो कंप्लीट करेंगे। तो आपके प्रिंसिपल सर जो काम असाइन कर रहे हैं आपके सर को, वो होता है ISR। ISR स्टैंड फॉर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब आपका जो इंटरप्ट है, आपके जो प्रिंसिपल सर एज ए इंटरप्ट एंटर हुए हैं क्लास में, वो जो टास्क लेकर आए हैं वो टास्क को हम बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। वो आपके सर जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो अपना मेन टास्क, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम, वो वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर प्रिंसिपल सर जो टास्क लेकर आ रहे हैं अलॉन्ग विद दैट उस टास्क का वो एड्रेस भी लेकर आते हैं कि मतलब वो टास्क कहाँ पे रखा हुआ है जो उनको करना है,
वो अगर अलॉन्ग विद दैट वो लेकर आते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर RST1 दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम, अगर ये इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो, RST1 अगर आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो एज ए इंटरप्ट, तो व्हाट विल हैपन, ये इंटरप्ट अपने साथ ये एड्रेस भी लेके जाता है। दैट मीन्स वेयर योर ISR रूटीन इज रिटन, तो इस लोकेशन पे 0008H पे एक स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम लिखा होगा जो बोलेगा कि प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया, दिस इज एंड ऑफ योर प्रोग्राम। समझ में आया? या फिर अगर कोई इंटरप्ट है, से फॉर एग्जांपल RST6, तो अगर आप RST6 लिखते हो तो 0030 पे उसका ISR रूटीन लिखा होगा, ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखा होगा। सपोज वो उसमें क्या लिखा होगा कि डिस्प्ले पे फ्रेंड डिस्प्ले होना चाहिए, आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे SSD पे फ्रेंड डिस्प्ले होना चाहिए। तो दैट प्रोग्राम विल बी रिटर्न हियर। तो अगर आप RST6 लिखोगे तो ये ISR रूटीन एग्जीक्यूट होगा और फ्रेंड करके SSD पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा। So this address, this ISR routine address is fixed. This you cannot change. आप सिर्फ RST0 से लेके RST7 तक का कोई भी इंटरप्ट चूज कर सकते हो, but the address is fixed. That address you cannot change. So these are all vectored interrupts. सिर्फ एक INTR ही ऐसा इंटरप्ट है which is a non-vectored interrupt. That means it's a user defined. User can define the ISR routine address. ठीक है? ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? ब्रांचिंग में ज्यादा नहीं था कुछ, बहुत इंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन JMP था, then we have all conditional jump, then call, then all conditional calls, then RET, then all conditional return, and at the end a restart, that is RST0 to RST7. ये हो गया आपका ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। कुछ डाउट है किसी को? नो मैम। मैम हाँ बोलो। मैम वो आपने बोला ना कि फ्रेंड वाला, तो मैम हाँ, फ्रेंड कैसे आएगा, मतलब अगर लाना है फ्रेंड तो कैसे आएगा? कैसे आएगा मतलब वो बड़ा प्रोग्राम होता है, उसका लुकअप टेबल वगैरह लिखना पड़ता है, बहुत कुछ होता है उसमें। फ्रेंड कैसे आएगा मतलब आपका 8 सेगमेंट होता है LED का यहाँ पे, तो अभी ये CC में मोड में कनेक्टेड है या CA मोड में कनेक्टेड है, कॉमन कैथोड मोड में है या कॉमन एनोड मोड में है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। अभी फ्रेंड अगर ग्लो करना है आपको तो डेफिनेटली आपको पहले F चाहिए, तो ये F है, तो F के लिए ये 2 LED, ये 4 LEDs ग्लो करनी चाहिए, और बाकी की जो LEDs है वो ग्लो नहीं करनी चाहिए, तो उसमें एक लुकअप टेबल बनाना पड़ता है। ओके मैम। इनके नाम होते हैं LEDs के, A B C D E F, दिस इज मिडल की जो लाइन है वो G, और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट होता है, उसे DP बोलते हैं। वो डॉट भी एक LED होती है, उसे DP बोलते हैं। तो आपको एक लुकअप टेबल बनाना पड़ता है, हर एक LED कभी ग्लो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली जो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो 2 मैनर में कनेक्टेड होता है, एक CC मोड में होता है और एक CA मोड में होता है। अभी CC के कैथोड एनोड टर्मिनल को पता होंगे आपको, डायोड के, LED के, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है LED का, पता है?
ये टर्मिनल एनोड होता है, ये टर्मिनल कैथोड होता है। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। सीसी का मतलब होता है कॉमन कैथोड। कॉमन मतलब यहाँ पे कितनी एलईडीज है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलईडीज है ना। सारी 8 एलईडीज का जो कैथोड होगा वो कॉमन होगा, मतलब सब एक साथ कनेक्टेड होंगे। एंड एनोड का एंड जो है वो ओपन होगा। तो अगर एलईडी को आपको ग्लो करवाना है तो एनोड को अगर 1 दोगे एंड कैथोड अगर ग्राउंड करोगे तो एलईडी ग्लो करेगी। ये होता है सीसी में, कॉमन कैथोड कनेक्शन में। तो उसके लिए मतलब प्रोग्राम लगेगा, उसके लिए पहले आपको एक लुकअप टेबल बनाना पड़ेगा। कुछ भी डिस्प्ले करना हो आपको, आपका नाम भी डिस्प्ले वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको पर्टिकुलर एलईडी का सेक्शन लाइक एस डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ये डी ग्लो करना चाहिए, ई ग्लो नहीं करना चाहिए। नहीं, कुछ गड़बड़, यहाँ पे ई बन गया पैटर्न। तो कुछ भी डिस्प्ले करना है तो उसका लुकअप टेबल बनाना पड़ता है। लुकअप टेबल बनाने के बाद देन यू कैन राइट अ प्रोग्राम जहाँ से आपको वो जो लुकअप टेबल का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में डाल के उससे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आउट करना पड़ता है डेटा। है समझ में? तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, मतलब तुम्हें फ्रेंड डिस्प्ले करना है? यस मैम। तो अगर फ्रेंड डिस्प्ले करना है तो फिर यही प्रोसीजर है, प्रोग्राम लगेगा उससे, और जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उससे प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर लो, एक लुकअप टेबल फॉर्म कर दो, और फिर वो लुकअप टेबल में जो भी आपका डेटा हो रहा है जनरेट, वो डेटा आप एक्यूमुलेटर में डाल के 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आउट कर लो। अगर आप आउट करोगे तो आपको फिर वो डिस्प्ले पे दिखाई देगा वहाँ पे। लेकिन और चीजें आएंगी कि वो एलईडी कितने टाइम तक ग्लो होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा काउंटर डालना पड़ेगा, उसको थोड़ा टाइमर सेट करना पड़ेगा। बिकॉज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड से यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो ही डेटा अगर आप फॉरवर्ड कर दोगे तो आपको वो विजिबल नहीं होगा, वो होल्ड भी होनी चाहिए वैल्यू वहाँ पे, क्योंकि नैनो सेकेंड के लिए वो डेटा जाता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, तो उसको माइक्रो सेकेंड के लिए होल्ड करना पड़ता है डेटा। और अगर होल्ड करके रखना है डेटा तो वहाँ पे आपको डिले ऐड ऑन करना पड़ता है, ताकि फिर वो जब एलईडी ग्लो होती है तो वो विजिबल होती है, तो उसमें डिले का प्रोग्राम भी आता है, तो वहाँ पे टाइमर काउंटर भी आ जाता है। मैम मतलब वो सब कोड बनाएंगे जब समझ में आएगा ना? हाँ हाँ, कोड बनाओगे तभी समझ में आएगा। लेकिन तुम्हारे अभी जो ये ईयर का आपका जो ये सब्जेक्ट है इसमें वो लेवल का इंटरफेसिंग नहीं है, आप लोगों को सिर्फ मेमोरी का ही इंटरफेसिंग है। ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, लाइक आप कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप के इंटरप्ट एक्सटर्नली अटैच कर सकते हो 8085 के साथ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग तरीके के आप 8085 के साथ अटैच करके देख सकते हो, एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मतलब बहुत कुछ अटैच करके देख सकते हो सिंपल। लेकिन आपको सिंपल एलईडी का भी ऐसा कुछ है नहीं, इंटरफेसिंग है नहीं, आपको सिर्फ मेमोरी का इंटरफेसिंग है। इन मेमोरी का इंटरफेसिंग में आपको एक्चुअली हार्डवेयर पे नहीं है, आपको सिर्फ डिजाइनिंग है उसका। ठीक है, ठीक है, ये करते ऐसे हैं, लेकिन ठीक है ये ओके। फिर next instruction set is your control instruction. Now control instruction NOP
ओके इसके पहले इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ब्रांचिंग में, jump, call, return, restart, all these instructions are 3 byte instruction because सारे instructions के साथ एड्रेस आता है ना? हाँ मैम। तो ब्रांचिंग में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, all those instructions are 3 byte instructions. Next is control instruction. तो कंट्रोल में है, फर्स्ट इज एनओपी स्टैंड फॉर नो ऑपरेशन, कुछ नहीं होता है इसमें। तो यूज क्यों करना है इसमें? लाइक मैंने बोला डिले, आपको अपने प्रोग्राम में जब डिले देना होता है दैट टाइम यू कैन यूज एनओपी इंस्ट्रक्शन। जब आप एनओपी इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो 4 टी स्टेट वेस्ट होते हैं। नाउ व्हाट इज टी स्टेट? टी स्टेट का मीनिंग है एक साइकिल। 1 टी स्टेट क्या होता है? एक साइकिल। साइकिल पता है ना आपको? हाँ मैम। हाँ, एक साइकिल पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक की एक साइकिल होती है। दिस इज कॉल्ड 1 टी स्टेट। ये क्या है? 1 टी स्टेट। ऐसे 4 टी स्टेट वेस्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, सिर्फ पास ऑन हो जाता है। ये जो मैं साइकिल बना रही हूँ किस चीज की साइकिल है? ये आपको पिन डायग्राम याद है? पिन डायग्राम में 2 पिन होते हैं, X1 X2 फॉर कनेक्टिंग क्रिस्टल ऑसिलेटर विद जनरेट क्लॉक ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज टू 5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। उल्टा बोला मैंने, याद है? पिन डायग्राम पढ़ाते वक्त पढ़ाया था। 4 तो बेसिक पिन होती हैं, 2 होती है सप्लाई की और 2 होती है क्लॉक जनरेशन की। एंड व्हाई डू वी जनरेट क्लॉक? क्लॉक क्यों जनरेट करते हैं हम? क्लॉक पे ही तो आपका स्पीड डिपेंड करता है प्रोसेसर का। क्लॉक की स्पीड पे ही तो प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड है, कितना फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। राइट? तो ये जो क्लॉक में ड्रॉ कर रही हूँ, एक्चुअली दिस क्लॉक इज द क्लॉक विच इज जनरेटेड यूजिंग दैट क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो व्हेन यू आर राइटिंग दिस एनओपी इंस्ट्रक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? सिर्फ 4 टी मतलब 4 टी स्टेट वेस्ट होते हैं। वेस्ट होते हैं मतलब सिर्फ पास ऑन हो जाते हैं, उस ड्यूरेशन में कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ठीक है? सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रोवाइड अ डिले इन योर प्रोग्राम, यू कैन यूज एनओपी इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपको 7 सेगमेंट से एलईडी अगर ग्लो करते हुए देखनी है तो आपको प्रोग्राम में डिले देना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है कि वो नैनो सेकेंड्स के लिए जलती है वो एलईडी, और जल के चली भी जाती है, आपको अपने आईज से वो पता नहीं चलता। तो आपको क्या करना पड़ता है प्रोग्राम में? जब आप डिले देते हो तो अपने आईज को वो विजिबल होता है, वो दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई भी चीज अगर नैनो सेकेंड्स के लिए हमारे आँख के सामने से गुजर जाए तो हमें क्लैरिटी नहीं आती हो, मतलब वो चीज हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द एलईडी। एलईडी अगर प्रॉपरली ग्लो होती है तो ही वो विजिबल होती है। तो अगर नैनो सेकेंड्स के लिए करंट पास हो गया एलईडी में से तो वो नैनो सेकेंड्स के लिए ग्लो हो गया, अगर हट गई तो आपको नहीं दिखाई देगी। तो इसे क्या करना पड़ता है? हमें होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड द डिले। जो चीज नैनो सेकेंड के लिए गुजर रही है उससे हम सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं। नैनो सेकेंड्स की जगह पे उसको हम सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। तो सेकेंड्स के लिए जब हम उसे होल्ड करके रखते हैं, that is visible to our eye.
तो वो होल्ड करने के लिए वी हैव टू राइट डिले प्रोग्राम, तो एनओपी यूज करके वी कैन राइट, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटा डिले देता है, उससे ज्यादा डिले की जरूरत पड़ती है एलईडी ग्लो करने के लिए। ठीक है, तो एनओपी इंस्ट्रक्शन से कुछ भी होता नहीं है, मोस्टली ये इंस्ट्रक्शन कहीं आएगी नहीं आपको प्रोग्राम में। अभी जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो एनओपी इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में जो इंस्ट्रक्शन है एचएलटी छोड़ के और कोई इंस्ट्रक्शन आने वाली नहीं है, बट ये इंस्ट्रक्शन आपको बेसिकली ऐसे पूछते हैं कि इसका यूज क्या है और होता क्या है। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम में हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एचएलटी हॉल्ट and then same thing, end of your program. Again, DI and EI. DI stands for EI stands for enable interrupt. किसी भी interrupt को अगर एक्टिवेट करना है EI enable होना चाहिए। एनेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल DI चाहिए, बट whenever you are enabling DI, जब DI को आप एक्टिवेट करते हो तो एक्सेप्ट ट्रैप बाकी सब डिसेबल हो जाते हैं, बिकॉज ट्रैप इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ट्रैप इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इससे ट्रैप डिसेबल नहीं होता है, एंड रेस्ट ऑल इंटरप्ट आर मास्केबल इंटरप्ट, इससे बाकी सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, and now last two control instruction, one is rim and sim। ये जो इसका जो लाइक जैसे हमारे पास फ्लैग रजिस्टर का स्ट्रक्चर है 8 बिट का, वैसे रिम का स्ट्रक्चर है 8 बिट का एंड सिम का स्ट्रक्चर है 8 बिट का। रिम स्टैंड फॉर रीड इंटरप्ट मास्क। लाइक जैसे हमने देखा था हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट है 7.5, RST 7.5, 6.5, 5.5। To read this interrupt, we require read interrupt mask। ठीक है, इसे रीड करने के लिए read interrupt mask, rim instruction is required। I stands for interrupt enable। enable करना है या नहीं करना है, 7.5 को करना है या नहीं करना है, या 5.5 को करना है या नहीं करना है, that you can define by I interrupt enable। SID अगर आपको पिन डायग्राम याद होगा तो वहां पे 2 पिन थे, वन इज SID सेकेंड इज इंटरप्ट serial in data, SOD stands for serial out data। So this is the same, serial in data is available in RIM and serial out data is available in SIM। RIM में we read the interrupt status and SIM में we set mask of the interrupt। Mask that means to disable it। Masking का meaning क्या होता है? To make it 0। So again, if you want to mask any one of the interrupts among this 7.5, 6.5, 5.5, then you have SIM instruction। Now, SID, SOD में से कोई भी यूज करना है अगर आपको, तो उससे पहले आपको SDE को एक्टिवेट करना पड़ता है। SDE stands for serial data enable। Whether you want to receive data or whether you want to send the data, SDE को पहले 1 कर दो। अगर SDE आपका 0 है तो SID SOD दोनों भी काम नहीं करेंगे।
Similar line, MAC. If you want to mask 7.5, 6.5, 5.5 मास्क करना है आपको, तो उसके पहले MAC को एक्टिवेट कर दो. अगर आपने MAC को एक्टिवेट नहीं किया है और आप मास्क करना चाहते हो तो भी मास्क नहीं होगा. फर्स्ट यू एक्टिवेट MAC को 1 करो, देन यू कैन मास्क एनी वन ऑफ देम. मोस्टली क्वेश्चन पेपर में इसका स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है, थिन मैन रिम का. ये आपके लास्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम में ये यूज नहीं होते हैं. अभी जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें ये यूज नहीं होने वाले, बट इसके स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना. ठीक है, क्लियर है सबको? हेलो, Yes, sir. जहाँ पे हमने 5 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन सेट देखे. फर्स्ट वाज डेटा ट्रांसफर, जिसमें सिर्फ डेटा आइदर मेमोरी रजिस्टर में से मूव होता है. तो रजिस्टर्स हमारे पास कौन से थे? एक्यूमुलेटर B, C, D, E, H, L. All these registers are available. मेमोरी हमारी कहाँ से कहाँ तक है? It starts from 4 zeros H to it goes till 4 SH. इतना पूरा मेमोरी स्पेस अवेलेबल है. तो डेटा हम यहाँ से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में मूव कर सकते हैं. So all those instructions are related with data transfer. Second was arithmetic. Arithmetic में क्या है? We have addition, subtraction. अरिथमेटिक में क्या है? वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. व्हाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जब हम प्रोग्राम करेंगे, दैट टाइम वी आर यूजिंग सक्सेसिव एडिशन मेथड एंड सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड. तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक. देन लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल किया था. लॉजिकल में क्या आता है? लॉजिकल में बहुत सारी चीजें आती हैं. पहले तो आपका आएगा एंडिंग, ऑरिंग, स्टोरिंग. उसके बाद कंपेयर है, रोटेट है, कॉम्प्लीमेंट है. ओके, ऑल दिस थिंग कम अंडर द लॉजिकल. आज हमने देखा ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. ब्रांचिंग में वी हैव जंप, कॉल, रिटर्न एंड रीस्टार्ट. अगेन उसमें कंडीशनल एंड अनकंडीशनल के 2 ऑप्शंस हैं. एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वेयर वी हैव हॉल्ट, NOP, EI, DI, RIM एंड SET. ठीक है. नाउ वन मोर क्वेश्चन associated with this instruction set. प्रायर कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें. एड्रेसिंग मोड करके क्वेश्चन आता है, तो वो भी कर लेते हैं. In 8085, we have 5 addressing modes: direct addressing mode, register addressing mode, register indirect addressing mode, immediate addressing mode, and implicit addressing mode.
टोटल 5 एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, इमीडिएट एंड इम्प्लिसिट। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। LDA 2500H। Now when I say direct addressing mode, direct and indirect में क्या होता है? LDA में क्या होता है? 2500H पे जो भी डेटा होगा वो किस में आएगा? एक्यूमुलेटर में आएगा, राइट? Yes, ma'am. So here it has already been defined कि 2500H जो है, it's the address of source, right? Yes. डेटा कहाँ पे है? वो already defined है, and destination is also defined. Move कहाँ पे होना चाहिए? डेटा को accumulator में move होना चाहिए, right? So this is Yes, called direct addressing mode because address of operand is already given in the instruction. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है कि एड्रेस कहाँ पे है जहाँ से आपको डेटा पिक करना है, आपको पता है। तो एड्रेस इज बीइंग ऑलरेडी डिफाइंड हियर, डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्शन में ही एड्रेस डिफाइन किया है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा? आपका जो एड्रेस है वो डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया होगा। से फॉर एग्जांपल मूव A, M। अभी यहाँ पे जो M है वो कहाँ पे है? वो डायरेक्टली डिफाइन किया गया है क्या? नहीं डिफाइन किया है यहाँ पे। इसके प्रायर हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं हमेशा? LXI एट से 6000H। Then if I write move A, M, तब आपको पता चलता है कि M कहाँ पे है। M कहाँ पे है? आपका 6000 पे है। So this instruction is incomplete, or this instruction is not defining directly the address. That's why this is indirect addressing mode. समझ में आ रहा है? Move A, M instruction is incomplete because directly address is not defined in this instruction. समझ में आ रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का डिफरेंस? हेलो, यस। डायरेक्ट में क्या हो रहा है? एलडीए के साथ आप डायरेक्टली एड्रेस लिखते हो ना, उस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली आपने एड्रेस दिया, उस एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। बट व्हेन यू राइट मूव A, M, कौन से मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में आना चाहिए? ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन से नहीं पता चल रहा है ना। व्हेन यू राइट मूव A, M, मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में आना चाहिए, बट कौन सी मेमोरी का डेटा आना चाहिए एक्यूमुलेटर में? दैट मेमोरी इज नॉट स्पेसिफाइड। तो उसके लिए एक प्रायर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो LXI से डिफाइंड होता है, HL पेयर जो मेमोरी को डिफाइन करता है। तो दिस इंस्ट्रक्शन is incomplete unless and until memory is not defined. So this is called indirect addressing mode. मतलब जितने भी memory related instructions रहेंगे वो सारे instructions किसमें आएंगे? indirect addressing mode में आएंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. Next is immediate addressing mode. तो ये तो straight forward है। Immediate मतलब immediately data is defined in the instruction itself, है ना। तो MVI हो गया, ADI हो गया, XRI, ORI, ANI, जिसमें भी I आता है ना, all those instructions are immediate addressing mode में आते हैं। मतलब जो भी डेटा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन में ही डिफाइंड है, तो डेटा इज इमीडिएटली अवेलेबल।
ओके, ये सिंपल है। इमीडिएट में इमीडिएटली डेटा इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, कहीं पे जाना वाना नहीं है आपको, डेटा आपको इंस्ट्रक्शन में ही मिल रहा है। So that comes under the immediate addressing mode. Immediate and register addressing mode, where data moves from register to register. Move A, B. Move A, B, register to register data move हो रहा है, तो इसको register addressing mode. इमीडिएट में क्या होता है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ही डेटा अवेलेबल होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा? रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? डेटा जहाँ पे ट्रांसफर करना है उसका डायरेक्ट एड्रेस अवेलेबल होता है इंस्ट्रक्शन में ही, LDA 25008। इनडायरेक्ट में क्या होता है? मूव A, M, address is not directly available, that's why it's an indirect addressing mode. Move A, M directly मुझे एड्रेस नहीं बता रहा है कि कहाँ पे है, वो नंबर्स नहीं बता रहा है मुझे, तो इट्स एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। समझ में आया? फर्स्ट इज यस मैम। immediate, second is register addressing mode, third is direct addressing mode, fourth is indirect addressing mode, and the last one is implicit या फिर implied भी बोलते हैं इसे, implicit और implied addressing mode। now इसमें आ जाएंगे like CMA हो गया, STC हो गया, CMC हो गया, a straight forward instruction। where your destination and source both are fixed। लाइक CMA हो गया तो एक्यूमुलेटर का ही डेटा कॉम्प्लीमेंट होके एक्यूमुलेटर में ही जाएगा, तो ऑल द थिंग्स आर सेम। एक्यूमुलेटर सोर्स है, एक्यूमुलेटर ही डेस्टिनेशन है। व्हाट विल हैपन? अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन विल टेक प्लेस। तो CMA हो गया। STC सेट कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग जो भी रहेगा उससे वो 1 कर देगा, तो सोर्स भी कैरी है, डेस्टिनेशन भी कैरी है। समझ में आ रहा है? CMA, STC, CMC, all these instructions. Then this one, RAL, RRC, RLC, RAR, all rotate instructions. All these instructions will come under the implicit addressing mode. सारे रोटेट इंस्ट्रक्शन जो हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, वो सारे इंस्ट्रक्शन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में आएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, सम इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन एंड कौन सा एड्रेसिंग मोड बिलोंग करते हैं वो इंस्ट्रक्शन वो आपको स्पेसिफाई करना होता है। ओके, तो आपके पास 5 एड्रेसिंग मोड्स है, उस 5 एड्रेसिंग मोड में ही आपके सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे। क्लियर है? हाँ मैम। ओके, नाउ मैम हाँ, मैम ये PDF सेंड करना। ये जो प्रीवियस जो था वो ऑलरेडी सेंड किया है मैंने, ये एड्रेसिंग मोड का मैं सेंड कर दूंगी। हाँ हाँ, सब कुछ है।
हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यस सर चलेगा। सर ओके सर। हाँ सर, ओके सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मैं तो रैंडमली इंस्ट्रक्शन पूछ रही हूँ आपको, आप मुझे बताओ कौन कितने बाइट का है, ठीक है? बिकॉज नाउ अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। एंड ठीक है, पहले कितने बाइट का है वो बताओ। तो फॉर एग्जाम्पल LDAX 1 बाइट। 1 बाइट, 1 आंसर। बाकी लोगों का क्या कहना है? समीन, फर्स्ट हाँ मैम। LDAX इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। 3 बाइट। 3 बाइट, ओके। Anyone else? Manish? मैम 2 बाइट 1 1, 2। See, LDAX B, इस इंस्ट्रक्शन में ना तो डेटा है ना ही एड्रेस है, राइट? कैसे लिखा है ये LDAX B? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ इंस्ट्रक्शन है ना डेटा है ना एड्रेस है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन है तो इट्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रक्शन में डेटा है देन इट्स 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में अगर एड्रेस है देन इट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है? दिस इज ओनली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। और दिस वन MDI MDI 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। कैसे लिखा है देखो, MDI B,57H 2 बाइट। 2 बाइट मैम 2 बाइट, because data is specified in the instruction. अगर डेटा है इंस्ट्रक्शन में तो इट्स 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। LHLD 3 बाइट 3 बाइट। 3 बाइट, ठीक है, बिकॉज एड्रेस इज स्पेसिफाइड। 2040 क्या है? एड्रेस है। तो अगर इंस्ट्रक्शन में एड्रेस है तो इट्स 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ऐसे 3 बाइट। एक्सचेंज, ये 1 बाइट है। हाँ, 1 बाइट। SCHC is a 1 byte instruction. No data, no address. Straight forward सिर्फ इंस्ट्रक्शन है तो इट्स 1 byte इंस्ट्रक्शन। ठीक है? For fetch 1 बाइट। 1 byte। बाकी सब क्या आंसर है? For fetch क्या है? Two बाइट तो रजिस्टर। हाँ। For fetch 1 byte, 2 byte, 3 byte। 1 बाइट है मैम, 1 बाइट। This is 1 byte because again इसमें कुछ भी डेटा नहीं स्पेसिफाइड है, एड्रेस नहीं स्पेसिफाइड है, तो it's 1 byte instruction. Now this one out 78H 2 बाइट। 78, it's a data, right?
data is specified here, right? So it's a 2 byte. ADD, ADDB or 1 byte. ADDM 1 byte. बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? समझी? ADDB, ADDM 1 byte, 2 byte, 3 byte, 1 byte. 1 byte. साथ साथ ADI 45H 1 byte, 2 byte, 3 byte. Ma'am, Sarthak is not there. 2 byte. Okay, Manish. Manish. Yes, ma'am. 2 byte है मैम. 2 byte. Ma'am, 2 Yes byte. मैम 2 byte है. 2 byte, okay. Okay, DADB 1 byte है मैम. 1 byte. INRB 1 byte. 1 byte. 1 byte. INXH 1 1 byte. byte. ANI 2 byte. 2 byte. 2 byte. RRC 1 byte. 1 byte. CMA, CMC, SPC all are 1 byte. Compare. Okay, CPI 89H 2 byte. 2 byte. 2 byte. Okay, JMP 3 byte. 3 byte. एड्रेस आ गया JMP के साथ 16 बिट का, तो 3 byte. Then conditional jump call 3 byte. Samir, Manish. 3 byte मैम 3 byte. अच्छा, पेजेस हाँ मैम बोला 3 byte. written RET 1 byte. 1 byte. ओके, बाकी आगे की जो है वो सारे 1 byte है.